children, how are you doing? Enjoying? Very good. Are you reading all type of text? Factual, fictional? Good. Today we are going to read about a factual text, Christ Mopera, and see how he became one. तो बच्चों, आज हम क्राइस्ट मोपेरा के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो क्राइस्ट मोपेरा बने कैसे. क्या वो एक आम इंसान थे? उनमें क्या अच्छी बातें थी? तो आइए शुरू करें. क्राइस्ट मोपेरा. Children, the world is fraught with a lot of wonderfully good persons. This story is about a noble and a courageous man known as Mopera. Mopera was a tall and strong man. He was a well-built man. Therefore, people called him a giant. He appeared like a giant, but he was very good and generous to everyone. He was always ready to assist people in one way or the other. Let's read and see how he became Christ Mopera. तो बच्चों, क्राइस्ट मोपेरा एक आम इंसान थे. वो बहुत लंबे चौड़े थे, वेल बिल्ट, ऐसे कि लोग उन्हें जायंट कहते थे. लेकिन उनमें जायंट वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही अच्छे थे, दिल के अच्छे थे, लोगों की मदद करते थे, दयालु थे. तो आइए जाने वो क्राइस्ट मोपेरा कैसे बने. One day, Mopera was sitting comfortably on the bank of a river. All of a sudden, he saw an old man who was staring at the river. Staring at the river. Children, इसका मतलब है वो लगातार घूर रहा था नदी की तरफ. The river was very wide and very deep. तो जो नदी थी बहुत ही चौड़ी थी और बहुत ही गहरी भी थी, deep. The old man was very sad. Mopera went to the old man and asked, "Why are you sad, sir?" The old man looked up at Mopera and said, "I want to cross the river, but it's very deep. The water flow is very fast and I don't know swimming." The water flow. तो उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं ये नदी पार तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसका बहाव बहुत ही तेज़ है. वाटर फ्लो यानी पानी का बहाव, और मुझे तो तैरना भी नहीं आता. डोंट वरी सर, यू कैन ईजिली सिट ऑन माई शोल्डर एंड आई विल टेक यू अक्रॉस. आई एम टॉल एंड वाटर इज़ नॉट सो डीप फॉर मी टू वॉक थ्रू इट. तो मोपेरा तो पहले से ही बहुत ही हेल्पफुल था, मददगार था. तो उसने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, और मेरे लिए तो पानी इतना गहरा नहीं है क्योंकि मैं बहुत लंबा हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, उसने ओल्ड मैन को अपने कंधे पर बिठाया और पार करने लगा. मोपेरा बेंट डाउन एंड द ओल्ड मैन क्लाइम्ड ऑन टू हिज स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स. They entered into the water. Very soon the old man reached the other side of the river. "How do I thank you?" the old man said. Mopera smiled and said, "If you are glad, that is quite enough for me." यानी मेरे लिए काफ़ी है. तो बच्चों, मोपेरा ने उस बूढ़े इंसान को नदी पार करा दी और वो बहुत ही खुश हुआ और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया. Then Mopera went back to the other side of the river. Following day means next day, यानी अगले दिन. Following day, Mopera thought, "Let me construct a hut and live here. In this manner, I can assist the people who wish to cross the deep river." इसी इंसिडेंट से, इसी बात से, जितनी ये जो घटना घटी, इससे ही मोपेरा को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं यहीं एक छोटी सी कुटिया बना लूँ, छोटा सा घर बना लूँ, और नदी पार करने वाले लोगों को अगर मेरी ज़रूरत हो, कोई मुश्किल में पड़ जाए, तो मैं उनकी मदद भी कर दूँ. Soon Mopera constructed a hut and started to live near the river. Daily he used to carry men, women and children across the river. तो बच्चों, यही सिलसिला शुरू हो गया कि उस नदी
को पार करने के लिए जो भी बच्चे, बूढ़े, औरतें आती, जिसको भी मदद की ज़रूरत होती, तो मोपेरा आगे आ जाता और उनकी मदद करता, क्योंकि अब वो इसी नदी के किनारे रहने लगा था. One night there came a very storm and the sky became dark. There were very strong winds and the water level grew the river. Suddenly, Mopera heard a loud voice. Mopera, please help me. Take me across the river. Mopera came out of his hut. He saw that a small boy was shivering badly in the cold. तो बच्चों, एक दिन तेज़ तूफान आया, तेज़ हवाएं चलने लगी और जो रिवर थी, जो नदी थी, उसमें पानी का स्तर काफ़ी ऊपर हो गया. अब उसने एक आवाज़ सुनी एक छोटे से बच्चे की, जो कांप रहा था उस सर्दी में और चीख रहा था कि मुझे ये नदी पार करा दो, प्लीज़ कोई तो मदद करो. Mopera bent down and said gently, "Oh, my dear child, come into my hut. The weather is not suitable now. We may go across the river in the morning." The child became sad and said, "Mopera, please take me across now. I want to leave now." इतने तूफान के बावजूद भी उस बच्चे ने कहा, मुझे तो अभी ये नदी पार करनी है. जबकि मोपेरा ने उसे समझाया कि मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं होगा कि हम अभी वो रिवर क्रॉस करें, तो मेरी हट में रुक जाओ. लेकिन वो बच्चा नहीं माना. Mopera saw tears welled in the child's eyes. Here, this means tears welled, यानी आंसू से उसकी आंखें भरी हुई थी, वो इतना उदास हो गया था. Then he took up the child on his strong shoulders and entered into the river. The icy water lashed on his body and the wind roared loudly around them. But Mopera held the child very tightly and went on walking. तो बच्चों, पानी बहुत ही ठंडा था, ऊंची ऊंची लहरें थी जिसके थपेड़े मोपेरा को लग रहे थे. इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी. वो उस बच्चे को टाइटली पकड़कर चलता रहा. At last they reached the other bank of the river. It became very dark till then. तो बच्चों, वो दूसरी तरफ तो पहुंच गए, दूसरे किनारे पर, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी. Mopera said, "Oh my child, can I?" "Oh my child, can I accompany you? It has become dark for you to go alone." So children, meaning of accompany. Accompany का मतलब होता है साथ चलना. तो मोपेरा ने कहा, इतनी रात हो गई है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इतना अंधेरा हो गया, ये ठीक नहीं होगा कि तुम अकेले जाओ. The child did not say anything and walked away slowly. Mopera saw a soft and unclear circle of light round his head like a gold crown. Mopera fell down on his knees. Mopera murmured, "The child seems Jesus. Thank God, I carried Jesus on my shoulders." Since then, Mopera became Christ Mopera. तो बच्चों, उसने देखा कि ये बच्चा कुछ जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक सर्कल ऑफ लाइट एक सर्कल के फॉर्म में क्राउन की तरह उसके ऊपर आ गया. और तब उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा कोई और नहीं, जीसस क्राइस्ट ही थे, जो शायद उसकी परीक्षा लेने आए थे. और इस बात का जब उसे एहसास हुआ तो वो नीचे गिर गया और तब से उसे क्राइस्ट मोपेरा के नाम से जाना जाता है. सो हियर यू कैन सी, ये बच्चा अब जा रहा है और अचानक से गायब हो गया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट मोपेरा, हिज काइंडनेस, एंड देन हाउ ही केम टू बी नोन एज क्राइस्ट मोपेरा. बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे सीख भी ली होगी. सो रीड द स्टोरी अगेन, अंडरस्टैंड इट, go through the new words learned and attempt the book exercises.